So good morning students. बच्चे we were doing chemical bonding and chemical bonding ਦੇ ਵਿੱਚ we were doing a very important logic ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ hybridization ठीक है and I told you कि hybridization is a very basic concept of chemistry which will be used everywhere in chemistry ठीक है ना जितनी देर तक ਤੁਸੀਂ chemistry पढ़ोगे you will use hybridization बच्चे ठीक है ना so hybridization ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ now सो कल आपने कुछ बेसिक ऑर्बिटल डायग्राम्स कीतियां सी हाइब्रिडाइजेशन दियां ठीक है ना सो बच्चे एज फार एज ऑर्बिटल डायग्राम्स आर कंसर्नड अपने सिलेबस च उन्नी ही है ठीक है ना हुन आपां करांगे ओवरऑल बहुत सारे जिन्ने भी आपां नू मॉलिक्यूल्स दे स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं एग्जाम्स दे विच अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ठीक है ना आपां नू पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਮਤਲਬ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਔਰ ਅਗਰ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ +1 ਚਾਹਨੇ ਆ ਚਾਹੇ +2 ਚਾਹਨੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟ ਅ ਸਟ੍ਰੈਚ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਪ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਬਿਟਲਸ taking part in hybridization number of orbitals involved in hybridization कितने होंगे बच्चे number of sigma bonds plus number of lone pairs of electrons around the central atom so बच्चे central atom ਦੇ कितने sigma bonds है plus उसके round about कितने lone pairs of electrons है ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਮੋਨੀਆ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਐਦਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਚ ਉਹਨੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਬਚ ਗਿਆ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 1 2 3 लोन पेयर कितने हैं 1 पेयर काउंट करना है इलेक्ट्रॉन्स नहीं सो लोन पेयर कितने हैं 1 सो टोटल पेयर्स कितने हो गए टोटल कितना हो गया सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर का 1 2 3 4 सो अपनी हाइब्रिडाइजेशन चार ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे यानी कि 1s 10p सो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी sp3 सिमिलरली अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सो कार्बन इज द सेंट्रल एटम जिसने अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स दो ऑक्सीजन्स नाल दो डबल बॉन्ड्स बना के शेयर किए हुए हैं सो लोन पेयर कोई नहीं बचा एक सिग्मा बॉन्ड इधर है एक सिग्मा बॉन्ड इधर है सो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हुए 2 लोन पेयर 0 टोटल कितना आया 2 1s 1p क्लियर सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशंस another example let it be we are talking about sulfur dioxide ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਬਚ ਗਿਆ ਸੋ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 1 2 ਇੱਕ ਪਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 1 2 ਸਿਗਮਾ ਇਧਰ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਸੋ 2 ਸਿਗਮਾ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ 3 ऑर्बिटल्स एक s 2p क्लियर बच्चे समझ आया कि नहीं सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम ठीक है ना ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਟਲੀਸਟ ਦੋ ਐਟਮਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ H3PO4 ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ H3PO4 ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ P
OH OH एंड OH। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਫਾਸਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ नो डाउट, बट देखो ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨੋਂ ਆਕਸੀਜਨਸ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰਫ ਦੇ ਆਰ ਲਿੰਕ ਟੂ ਫਾਸਫੋਰਸ, दूसरी तरफ दे आर लिंक टू हाइड्रोजन। सो एदी भी हाइब्रिडाइजेशन होगी, एदी भी होगी, एदी भी होगी। तीनों हाइड्रोजन साइड पे है, आह वाली ऑक्सीजन साइड पे है, सो इनका दी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। यू गेटिंग अ पॉइंट? ओनली द सेंट्रल एटम्स आर हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है ना? हाइब्रिडाइजेशन किहदी हुंदी है? सिर्फ सेंट्रल एटम दी। ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਰਬਿਟਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿੰਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਦੇ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਪਲੱਸ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਬਣੂਗੀ ਬੱਚੇ? ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ? 5। ਉਹ 5 ਦੇ 5 ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5। ਸੋ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡਸ ਕਿੰਨੇ ਆ? 1 2 3 ਐਂਡ 4। ਸੋ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆਈ? sp3, एक s 3p 4। ऑक्सीजन दी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी? ऑक्सीजन दे आउटर शेल च कितने इलेक्ट्रॉन्स होंदे हैं? 6। एक इधर यूज कर लिया फास्फोरस दे नाल, एक हाइड्रोजन दे नाल यूज कर लिया, 2 4 बच गए। ठीक है? सो एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, 2 सिग्मा हो गए। लोन पेयर्स कितने हुए? अगेन 2। सो 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, टोटल कितना होया? sp3 again 4, total कितना है? 4। so again oxygens are also sp3 hybridized here। पल्ले प्यार जी सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स काउंट करने हैं अपन ने while calculating the hybridization। for example, another example, हम देखो बच्चे, देखो ध्यान नाल जरा। लेट इट बी, सोनू कोई कहता है कि XeOF2 मॉलिक्यूल है। ठीक है? जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड XeOF2। ਇੱਥੇ जीनॉन ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ जीनॉन इज अ नोबल गैस जिस ਦੇ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ 'ਚ देयर आर 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। मैं जस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗੇਨ, है ना, कि हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला। ਹੁਣ देखो बच्चे फ्लोरीन्स सिंगल बॉन्ड बनाती हैं, उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने 2 फ्लोरीन्स ਦੇ ਨਾਲ शेयर कर ले, कितने भी कर दो एक बार, कोई बात नहीं, आप स्ट्रक्चर्स बात करांगे। ऑक्सीजन बनाती है डबल बॉन्ड, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स उन्हें एक ऑक्सीजन ਦੇ ਨਾਲ शेयर कर ले। क्लियर? ਹੁਣ ਉਸਦੇ सिग्मा बॉन्ड्स कितने ਹੋਏ? ਆ ਦੋਨੋਂ ਦਾ सिग्मा है, ਇੱਥੇ ਇੱਕ सिग्मा ਇੱਕ पाया, सो सिग्मा बॉन्ड्स कितने होए? 1 2 एंड 3। क्लियर? 3 सिग्मा, लोन पेयर कितने हैं? 2। सो 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर्स, टोटल कितना होया? 5। सो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होएगी? एक s p 3 होंदे हैं, उस तो बाद की स्टार्ट हो गया d। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। डन? ठीक है? सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है ना? चलो खैर आप पहला हाइब्रिडाइजेशंस करते हैं। ठीक है? कि केड़ी-केड़ी टाइप दी हाइब्रिडाइजेशंस अपने पास होंदी हैं, एंड देन वील स्टडी द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चे? सो ध्यान नाल करना है इन्हां नूं, यू गेटिंग अ पॉइंट? ध्यान नाल करना है इस टॉपिक नूं। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन आई रिपीट कि जितनी देर तक केमिस्ट्री पढ़ोगे हाइब्रिडाइजेशन उतनी देर तक ही यूज होगी बच्चे। ठीक है ना? सो बच्चे पहला आपां करांगे कि केड़ी-केड़ी हाइब्रिडाइजेशन इज लिंक्ड टू विच स्ट्रक्चर। ठीक है? पहला आपां करांगे कुछ रेगुलर स्ट्रक्चर्स। रेगुलर दा मतलब की हुंदा है? जदों कोई लोन पेयर इन्वॉल्वड नहीं हुंदा। ठीक है ना? आपां कीता सी ना कि रेगुलर स्ट्रक्चर्स की हुंदे ने जदों कोई लोन पेयर ना होवे। ठीक है? 2 कंडीशंस कीतियां सी रेगुलर स्ट्रक्चर होने लई। एक तां कोई लोन पेयर ना होवे, दूसरा व्हेन ऑल द साइड एटम्स आर सेम। जदों अपने को लोन पेयर्स आएंगे या साइड एटम्स अलग-अलग होंगे, then we get irregular structures। ठीक है ना? सो हेडिंग दियो अपनी नोटबुक पे, some regular structures बच्चे।
सो रेगुलर स्ट्रक्चर्स ਲਈ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ नो लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम के चारों तरफ कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए नंबर 2 ऑल साइड एटम्स आर सेम सो साइड वाले सारे एटम्स बच्चे सेम होने चाहिए क्लियर हुण रेगुलर स्ट्रक्चर्स किहड़े किहड़े होणगे वो आपां करते हैं सो देखो हुण इसको बच्चे ध्यान नाल करना है सो हुण इसको ध्यान नाल करना है जी ठीक है ना आपां एक चार्ट बनावांगे तुसी उस चार्ट नू फुल पेज ते बनाना है मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड्स कॉपी दियां यूज करनी है जेडे कॉलम्स मैं बना रहे हैं ठीक है ओहो वाले कॉलम्स तुहानू बनाने हैं ठीक है ना तो इदा फुल कॉपी नू यूज करियो इदा ओपन करके ठीक है सो फर्स्ट कॉलम इन दैट इज मॉलिक्यूल टाइप ठीक है मॉलिक्यूल टाइप second example is second column is उसकी example ठीक है third example is hybridization next is structure या जिन्हों आप बोलते हैं geometry and next is bond angles ठीक है सो हम देखो दे पहली मॉलिक्यूल टाइप इज AB2 फर्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज AB2 ठीक है सो इसकी एग्जांपल्स अपने को केड़ी है बच्चे BeF2 एंड CO2 हाँ जी बच्चे सो देखो बेरिलियम दे चारों तरफ बेरिलियम दे कोल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे हैं दो फ्लोरीन्स नाल शेयर करके दोनों की हो गए शेयर सो लोन पेयर कोई नहीं बचा कार्बन कुल कितने होंगे ने 4 एक ऑक्सीजन नाल कितने शेयर होंगे 2 सो दोनों पासे शेयर करके अपने को अगेन कोई लोन पेयर नहीं बचा सो अपनी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है कोई लोन पेयर नहीं तो दोनों साइड एटम्स की है सेम ठीक है हाइब्रिडाइजेशन केड़ी होएगी सो देखो बच्चे हाइब्रिडाइजेशन जो हम बात चल रहे हैं स्ट्रक्चर की होएगा ऐसा सॉरी इसको अपन कहते हैं ए बी एंड बी सो एंगल कितना हो गया बच्चे आपस में 180 डिग्री जो अपने को दो एटम्स है एक इधर होएगा एक इधर ठीक है 180 डिग्री एंगल इस ज्योमेट्री को अपन कहते हैं बच्चे लीनियर सो दिस इज योर लीनियर ज्योमेट्री सो इस दे विच हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई एक बॉन्ड इधर एक सिग्मा बॉन्ड इधर सो कितनी हाइब्रिडाइजेशन टोटल इज 2 sp कोई लोन पेयर है नहीं देखो ना एक सिग्मा बॉन्ड इधर है एक सिग्मा बॉन्ड इधर है ठीक है क्लियर जिਵੇਂ कि देखो BeF2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ एंड कार्बन डाइऑक्साइड इदां ਬਣਾਵਾਂਗੇ क्लियर डन सो दो सिग्मा बॉन्ड्स है सेंट्रल एटम दे लोन पेयर कोई है नहीं सो टोटल इज 2 एक S एक P sp हाइब्रिडाइजेशन एंड डन So this is your first molecule type ठीक है बच्चे अगेन मैं कह रहा है कि इसमें लूज लिखना है खुला करके ठीक है ना कोई पेज यूज करने च कंजूसी ना करियो बाद विच फिर टाइट हो जाता तो समझ ही नहीं आना ठीक है नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसको बच्चे आप बोलते हैं AB3 यानी कि एक सेंट्रल एटम होएगा ते 3 साइड एटम्स होंगे ठीक है सो इस दी एग्जांपल BF3 एंड SO3 सो देखो बोरॉन को आउटर शेयर 3 इलेक्ट्रॉन सी तीनों शेयर हो गए सल्फर को 6 सी एक ऑक्सीजन नाल 2 शेयर करके 6 ਦੇ 6 शेयर हो गए ठीक है नाउ सो इसका स्ट्रक्चर ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ सो देखो बच्चे इसका स्ट्रक्चर है ना सो A B B and B सो स्ट्रक्चर की बनता है ट्रायंगुलर ते एंगल कितना होता है बच्चे
120 डिग्री। सो ज्योमेट्री लिखो, या तो आप इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर या फिर ट्रिगनल प्लेनर। की बोलते हैं बच्चे? ट्रिगनल प्लेनर। डन। ਜਿਹੜੀਆਂ दोनों एग्जांपल्स अपन लेतियां ने BF3 ते या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, विद ईच एंगल 120 डिग्रीज ते शेप किहड़ी होगी? ट्रायंगुलर। अपने को सेंट्रल एटम ते कोई लोन पेयर नहीं बचा होया। क्लियर? आप काफी बार कर ली हूं ट्रायंगुलर शेप। हाँ जी बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? सिग्मा बॉन्ड्स आर 3, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, सो लोन पेयर कोई है नहीं, सो एक S 2P। क्लियर? sp2 हाइब्रिडाइजेशन डन। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡਸ ਤੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? 3, ਸੋ ਇੱਕ S 2P sp2। ठीक है, लोन पेयर्स वाले केसेस आप बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, सो आई होप डन और क्लियर। ठीक है बच्चे, नाउ सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल टाइप। हुन एग्जांपल्स नाल ड्रॉ करनी है, बस बात कर देना है, वो तो एक ही गल है, सेंट्रल एटम लिखना है ते स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है ना। सो बच्चे नेक्स्ट मॉलिक्यूल टाइप पे मूव करते हैं अपन। सो अगर मॉलिक्यूल दी टाइप इज AB4, सो हुन अपने को सेंट्रल एटम ते 4 साइड एटम्स लगे हुए हैं। ठीक है, एग्जांपल CH4, Cl4, XeO4। ठीक है, सो कार्बन दे आउटर शेल्स देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चारों शेयर्ड है। ज़ीनॉन को 8 है, तो 8 दे 8 शेयर्ड है। ठीक है, सो ये सारे एग्जांपल सब का स्ट्रक्चर सेम होगा। कितना बच्चे हुन देखो मैं एंगल बना रहे हैं, सो जो 4 साइड एटम्स होंगे हैं तो स्ट्रक्चर की होता है? मैं मीथेन बना रहे हैं ना विचों, आप कर भी चुके। सो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, सॉरी आप जनरल स्ट्रक्चर ही बना देंगे, A B B B एंड B। सो इस स्ट्रक्चर का अपन ने की नाम दिता सी बच्चे? टेट्राहेड्रल विद ईच एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स, विद ईच एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, सो ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई बच्चे? 4 सिग्मा बॉन्ड्स, सो एक S 10P sp3। क्लियर बच्चे, फंडा क्लियर है? ठीक है ना। सो अपने को जो 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, लोन पेयर्स कोई होने नहीं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल शेप विद ईच एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगेन आई रिपीट कि हले आप सिर्फ और सिर्फ विदाउट लोन पेयर्स कर रहे हैं। जो आप लोन पेयर्स ते आवांगे, ठीक है, उदों अपनी यही शेप्स किवें बन जाएंगी आप बाद च करांगे। ठीक है, फिलहाल सिर्फ रेगुलर शेप्स विदाउट एनी लोन पेयर्स। आपको याद की होना चाहिए कि अगर 2 सिग्मा बॉन्ड्स है तो sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर शेप, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्रायंगुलर शेप, 4 सिग्मा बॉन्ड्स है sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल शेप। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल टाइप जिसको अपन बोलते हैं बच्चे AB5। ठीक है, हुन अगर अपन आंदा कि XeO4 का स्ट्रक्चर बनाओ तो इथे लिखांगे ज़ीनॉन डबल बॉन्ड नाल चारों ऑक्सीजन्स। क्लियर, मीथेन का स्ट्रक्चर बनाओ, इथे लिखांगे कार्बन ते चारों हाइड्रोजन्स ओदे राउंड अबाउट। क्लियर है बच्चे? सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन। हुन ਆਪਾਂ आने नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ते जिसको ਆਪਾਂ बोलते हैं AB5 बजे। सो बच्चे हुन AB5 दी एग्जांपल्स की है। सो देखो PF5, PCl5। सो देखो फास्फोरस इज द सेंट्रल एटम, फास्फोरस दे आउटर शेल च कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हैं? 5। सो ऑल 5 उसने शेयर कर ले, कोई लोन पेयर नहीं बचा। क्लियर। नाउ
ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ नीचे बनावांगे आप एक ट्रायंगल। ਸਾਨੂੰ याद होएगा आपने जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की थी ਉਹਦਾ आपने बनाया भी सीगा, ठीक है। सो सेम स्ट्रक्चर है। सो नीचे एक ट्रायंगल, ऊपर दो पिरामिड्स। सो दिस इज योर, सॉरी आप फास्फोरस नहीं लिखना, जनरल ए बी 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 एंड बी, फाइन। स्ट्रक्चर का नाम देखो बच्चे, नीचे ट्रायंगल है तो ट्रिगनल, नीचे ट्रायंगल है तो एक ट्रिगनल, दो पिरामिड्स है बच्चे, है ना। सो बाय पिरामिडल, ट्रिगनल बाय पिरामिडल। आई होप दिस इज फाइन। नीचे ट्रायंगल ते दो पिरामिड्स, याद है ना स्ट्रक्चर से मैं एक्सप्लेन किया हुआ है। जेडे नीचे वाले तीन बॉन्ड्स है दे आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ऊपर वाले ते नीचे वाले दो बॉन्ड्स, जेडे ऊपर वाले बॉन्ड्स दिखाए है एक किने है, एक ऐदा बाहर नु, एक पिछले पासे। इन्हां दा नाम की सीगा, एक्सियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड लेंथ वाज ग्रेटर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, याद होगा सब, ठीक है। ट्रिगनल बाय पिरामिडल, जेडे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है उन्हां दा आपस विच एंगल कितना सी 120, इन्हां दा आपस विच कितना सी 180। एक्सियल दा एक इक्वेटोरियल दा एक्सियल दे नाल कितना सी 90 डिग्री, याद है ना ये, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ट्रिगनल बाय पिरामिडल शेप। हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी बच्चे? सो 5 सिग्मा बॉन्ड्स है, सो वी नीड 5 ऑर्बिटल्स नाउ। सो s p3, ਹੁਣ p ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ sp4 ਨਾ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸੋ sp3 d ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ ਹੁਣ। सो नाउ d ऑर्बिटल्स विल स्टार्ट। सो बच्चे ध्यान रखना गलती ना कदे sp4 हाइब्रिडाइजेशन लिख दो, ठीक है ना। p ऑर्बिटल्स तीन ही होंगे ने, उस तो बाद d स्टार्ट हो जाएगा। सो sp3 d, क्लियर, डन, ठीक है। सो ट्रिगनल बायपिरामिडल। नाउ so we'll move on to the next type of molecules। सो बस हम आपने इतना ही करना है, जिवें देखो हम अपने कोल 5 बॉन्ड सी, आपने 3 प्लेन च करते, 2 पिरामिड्स च, समझ गए ना। देखो ये इतना बनया बच्चे स्ट्रक्चर, जस्ट टू शो यू मैं सब दिखाना है। देखो लेट इट बी, दिस इज योर फास्फोरस, तो एक फ्लोरीन इत्थे है, एक फ्लोरीन इत्थे और एक फ्लोरीन इत्थे। सो ट्रायंगल बन गया, दिख रहा है, क्लियर। सो दिस इज अ ट्रायंगल। नाउ सो एक फ्लोरीन इत्थे है बच्चे, हम पिरामिड एक इत्थे एंड सिमिलरली एक बैक पे, क्लियर। सो दिस इज अ 3D वर्जन, मेरी गल समझ गई ना, ऐदा, ठीक है। एक इत्थे और एक ऊपर। सो एक ट्रायंगल बन चुकिया, सेंटर ते की है फास्फोरस, 3 फ्लोरीन्स ट्रायंगल दे कॉर्नर ते, एक ऊपर पिरामिड और एक नीचे पिरामिड। अगर आप ऐदा देखांगे बोर्ड वाले स्टाइल, बोर्ड वाले उस नाल, तो 3 फ्लोरीन्स, एक इत्थे और एक पीछे, ठीक है ना। सो दिस इज ट्रिगनल बायपिरामिडल शेप बच्चे। नाउ नेक्स्ट टाइप पे आओ। सो दैट विल बी AB6 टाइप। एग्जांपल की बनेगी बच्चे, ऑफ कोर्स सल्फर हेक्साफ्लोराइड, क्योंकि सल्फर दे आउटर शेल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ने, 6 दे 6 यूज हो गए, ठीक है। हाँ जी, स्ट्रक्चर वही बनेगा। देखो जो 5 बॉन्ड सी, आपने 3 नीचे प्लेन च बनाए, 2 पिरामिड्स, हुण इत्थे 4 प्लेन च 2 पिरामिड्स। जो 4 प्लेन च होंगे तो शेप की होगी स्क्वायर। सो देखो, सो आप 4 बॉन्ड्स रखांगे नीचे, आप SF6 भी बनाया सीगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी च, ते मैं इस शेप ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ऑक्टाहेड्रल। सो देखो, सो दिस इज द शेप ऑफ SF6। इस शेप ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੈਸੇ ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। बट ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, स्क्वायर
बायपिरामिडल। सो नीचे एक स्क्वायर है ते दो पिरामिड्स है, सो अपन स्क्वायर बायपिरामिडल भी बोल सकते हैं, बट हैबिट बनाओ कि अपन ऑक्टाहेड्रल ही बोलिए बच्चे, ठीक है। नाउ सो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, 6 सिग्मा बॉन्ड्स है, सो एक S चाहिए मैनू, 3 P चाहिए ने, 4 ते 2 D, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। सो एक S ऑर्बिटल, 3 P ऑर्बिटल्स ते 2 D ऑर्बिटल्स, सो 6 ऑर्बिटल्स फ्यूज हो गए, 6 नਵੇਂ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे किस दे, सल्फर दे। डन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल AB7 बचे, ठीक है। सो IF7, आयोडीन के आउटर शेल च कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आयोडीन एक हेलोजन है, सो उसके आउटर इलेक्ट्रॉन 7 आउटर शेल दे विच, वैलेंस शेल दे विच 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 दे 7 फ्लोरीन्स नाल एक एक करके शेयर हो गए। नाउ सो बच्चे सेम वे नाल टोटल 7 है, 2 पिरामिड्स ते रखांगे, 5 प्लेन च रखांगे, सो नीचे पेंटागन होगा, ऊपर नीचे 2 पिरामिड्स। सो देखो स्ट्रक्चर कितना बनूंगा, सो एक पेंटागन बन गया, ठीक है, A B B B B एंड B। सो ये साइड एटम्स लगाते हैं अपन ने, ठीक है। हुन आप लगा देंगे 2 पिरामिड्स किसी भी जगह पे। डन। सो अपनी शेप की बन गई बच्चे पेंटागनल बाय पिरामिडल, पेंटागन बाय पिरामिड, ठीक है। नाउ हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, सो sp3 4 हो गए, टोटल 7 चाहिए है, 3d, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन बचे। सो एक s, 3p और 3d 7 ऑर्बिटल्स फ्यूज होके मेरे को 7 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, 7 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स of iodine during the formation of IF7 and the shape of the molecule will be pentagonal bipyramidal, ठीक है। सो बच्चे these are your regular shapes, ठीक है। हुन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸੋ ਦੇਖੋ सो हम जो अपन नेक्स्ट लेक्चर करना है बच्चे, अपन सिर्फ इतना याद होना चाहिए है, इधर देखो बच्चे ध्यान नाल, हुन अपन को लर्नड की होना चाहिए है कि अगर अपने कोल sp हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप इज लीनियर, sp2 ते शेप इज ट्रायंगुलर, sp3 ते शेप इज टेट्राहेड्रल, sp3d 5 हो गए तो ट्रिगोनल बायपिरामिडल, sp3d2 6 हो गए था ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 7 हो गए था पेंटागनल बायपिरामिडल। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਰੈਗੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਬੱਚੇ ਇਰੈਗੂਲਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਐਦਾਂ ਰਟਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ sp3 ਤੇ ਟੈਟਰਾहेड्रल ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ sp3d ਤੇ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੂਗਾ, ਟ੍ਰਿਗੋਨਲ ਬਾਇਪਿਰਾमिडल ਸਰ, sp2 ਤੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। अगर अपन ये स्ट्रक्चर्स रेगुलर स्ट्रक्चर्स याद है तो बच्चे मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स बनाने आर वेरी 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 इजी, ठीक है ना। अपन लोन पेयर्स वाले स्ट्रक्चर्स करांगे कल ही, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर च, बट मैं जस्ट तुम्हें एक एग्जांपल देना है कि अपन ये स्ट्रक्चर्स किवें बनाने होंगे, ठीक है ना।
ਸੋ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਰਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗੇਨ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਕਿ ਅਗਰ sp ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਸ਼ੇਪ, sp2 ਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ, sp3 ਤੇ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ, sp3d ਤੇ ਟ੍ਰਿਗਨਲ ਬਾਇਪਿਰਾਮਿਡਲ, sp3d2 ਤੇ ਔਕਟਾਹੈਡਰਲ ਜਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਬਾਇਪਿਰਾਮਿਡਲ, sp3d3 ਤੇ ਪੈਂਟਾਗਨਲ ਬਾਇਪਿਰਾਮਿਡਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਰਨ ਅਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਪਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਰਵੇ, ਨਾਓ ਵੀ ਡੂ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵਨ ਇਜ਼ ਮੀਥੇਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਿਉਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਨਦਰ ਇਜ਼ ਐਮੋਨੀਆ, ਅਨਦਰ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਕਿ ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਮੋਨੀਆ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਪਿਰਾਮਿਡ। ਦੋ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ। ਕਦੋਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ VSEPR ਥਿਊਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਂਡ, याद है, ठीक है। सो दीज थ्री आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ मीथेन, एमोनिया एंड वाटर, जो अपन को पता है, मतलब फॉर ग्रांटेडली पता है कि यस ये स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। बट हुन आप हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू सपोज अपन को नहीं पता, आप इन्ना तक पहुंचांगे, ठीक है। मेरी गल समझ गए ना। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ये बेंड स्ट्रक्चर है। सपोज अपन को इन्ना बारे कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। नाउ वील रीच टू दीज स्ट्रक्चर्स विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यही अपना मेन रोल है बच्चे। हुन उत्थे अपन को क्वेश्चन का कुछ भी आ सकता है, H2S का स्ट्रक्चर बनाओ, PH3 का स्ट्रक्चर बनाओ, PCl3 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो अपन को बेसिक लॉजिक पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर्स किद्दां बनते हैं। सो हुन ध्यान नाल देखो, बिफोर आई बिगिन माय एग्जांपल अगेन ध्यान नाल देखो कि वाटर का स्ट्रक्चर बेंट है, एमोनिया पिरामिडल, मीथेन टेट्राहेड्रल। मैं हुन इन्हां स्ट्रक्चर्स पे पहुंचूंगा with the help of hybridization। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਰਵੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬੈਂਟ ਹੈ, ਐਮੋਨੀਆ ਦਾ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਹੈ, ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ sp ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਪ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ, sp2 है तो ट्रायंगुलर है, sp3 है टेट्राहेड्रल है, sp3d है ट्रिगोनल बायपिरामिडल है, sp3d2 है ऑक्टाहेड्रल है, sp3d3 है तो पेंटागोनल बायपिरामिडल है। डन। नाउ सो मीथेन इज द सेंट्रल एटम जिसदे कोल मीथेन च कार्बन इज द सेंट्रल एटम जिसदे कोल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। उन्हें अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स एक हाइड्रोजन दे नाल शेयर कर लगे। क्लियर। नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम जिसदे कोल 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ओनू 3 दी जरूरत है तो उन्हें अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 हाइड्रोजन दे नाल शेयर कर ले। ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम जिसदे कोल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसनु 2 दी जरूरत है, उन्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 अलग-अलग हाइड्रोजन दे नाल शेयर कर ले, ठीक है। हुन बच्चे देखो मैं हाइब्रिडाइजेशंस कैलकुलेट कर रहे हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड्स है 1 2 3 4। देखो बच्चे 4 सिग्मा बॉन्ड्स लोन पेयर कोई है नहीं, ठीक है। सो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई sp3। और क्लियर है कि नहीं। एमोनिया पे आ जाओ, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं 1 2 3, लोन पेयर कितने हैं 1, 3 + 1 4। अगेन नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई sp3। वाटर पे आ जाओ, ऑक्सीजन को सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं 1 2, लोन पेयर कितने हैं 1 2, 2 + 2 4। सो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई अगेन sp3। सो ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੱਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਹੁਣ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟੈਟਰਾहेड्रल। याद है कि नहीं। सो देखो, सो मैं सिर्फ सेंट्रल एटम लिख के टेट्राहेड्रल बना दूंगा।
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्लियर है बच्चे? सो टेट्राहेड्रल बनाता अपने, इथे कोई भी लोन पेयर नहीं है, सो H H H एंड H, सो टेट्राहेड्रल बन गया। वो इजी के नहीं, कोई लोन पेयर नहीं है, जो लोन पेयर है नहीं तो रेगुलर स्ट्रक्चर बन गया। रेगुलर स्ट्रक्चर मींस टेट्राहेड्रल। क्लियर? सो मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही आएगा क्योंकि चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड्स है, कोई लोन पेयर नहीं है। हुन अमोनिया को ला जाओ बच्चे। सो दिस इज अमोनिया नाउ, एक लोन पेयर है, तीन सिग्मा बॉन्ड्स है, सो इथे लोन पेयर चला गया, सो ये वाला बॉन्ड का काउंट ही नहीं होगा। H H H, सो शेप केड़ी रहेगी? सिर्फ Ne यानी कि पिरामिडल। इथे की चला गया? लोन पेयर। और क्लियर की नहीं? इजी है ना बच्चे? सो एक बॉन्ड जिथे जाना सी उथे तो लोन पेयर चला गया, सो अपनी शेप सिर्फ पिरामिडल बच गई। क्लियर? वाटर को ले आ जाओ, दो लोन पेयर्स है, सो इथे भी लोन पेयर, इथे भी लोन पेयर, सो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। सो शेप केड़ी बच गई बच्चे? सिर्फ Ne यानी कि बेंट। इजी है कि नहीं? सो अपन को हाइब्रिडाइजेशन ਦੇ ਨਾਲ बस रेगुलर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो वही रेगुलर स्ट्रक्चर आऊगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟਡ ਟੈਟਰਾहेड्रल ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟੋਰਟਡ ਟੈਟਰਾहेड्रल ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਉਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਚਾਰੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ ਟੈਟਰਾहेड्रल, ਇੱਕ ਲੋਨ पेयर है तो पिरामिडल बन गया ऑटोमेटिकली, दो लोन पेयर्स है तो बेंट बन गया। मेरी गल समझ आई कि नहीं? सो ऐदा ही ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੇ? ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਅਗੇਨ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਈ ਜਾਵੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ 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 ਈਜ਼ੀ। ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ? ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਅਗੇਨ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਰਲ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਰਵਾਣਾ ਮੈਂ, ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we do lots and lots of practice, ठीक है बच्चे? once again I would like to say कि hybridization is an internal part of chemistry, very 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 important, ठीक है ना? so चंगी तरह कर लियो बच्चे। so at the end again I would like to say कि keep working hard, ठीक है? we teachers भी देखो हार्ड वर्क कर रहे ने, तुसी भी हार्ड वर्क कर रहे हो, and the results should be very fruitful, ठीक है ना? so keep studying, keep working hard, keep yourself fit and fine बच्चे। thanks a lot।